पॉपुलर डिमांड पे लेके आया हूं ब्लड डायमंड्स के बारे वीडियो। एक शॉर्ट बनाया था, शॉर्ट में कहा था कि 100 से ज्यादा कमेंट्स करें तो ये वीडियो बनाऊंगा। एंड ये वीडियो बन रहा है। ब्लड डायमंड्स और सेरा लियोन की बात करेंगे, विच इज अ कंट्री इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, नॉट सनी लियोन, सेरा लियोन। एंड ऑल्सो लेट्स ऑल्सो डिस्कस अबाउट दिस होल कॉन्सेप्ट, बिकॉज ये जो ब्लड डायमंड्स का कॉन्सेप्ट है ये ओरिजिनेट हुआ है अफ्रीकन कंट्रीज में से, पर्टिकुलरली इन सेरा लियोन. Now, what is the definition of blood diamonds? Why did this concept originated? And what is the international community doing to prevent the sale of these blood diamonds? Do these blood diamonds mean that ये diamonds के ऊपर blood लगा हुआ है और export किए जा रहे हैं? Let's try to understand that in this video. I am your friendly neighborhood educator Kuber Singh for IR as well as for internal security. नाउ सेरा लियोन, लेट्स हैव अ लुक एट द मैप फर्स्ट. ये देखिए आप, वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में है, इसका कैपिटल है फ्री टाउन और ये ओपन अप होता है टू द अटलांटिक ओशन. किसी जमाने में ये एक ब्रिटिश कॉलोनी था. इट वाज अ फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनी. एंड ऑल्सो वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका वी हैव सीन अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रांस एज वेल एज ऑफ ब्रिटेन, एंड देयरफॉर दिस इंपॉर्टेंट प्लेस वाज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द इनफेमस ट्रांस अटलांटिक ट्रेड. अब ये जो ट्रांस अटलांटिक ट्रेड है बेसिकली, which was basically the export and the import of the labor. Labor was used as a commodity. Labor was utilized as a commodity by the imperialist powers, and surplus labor was exported from one part of the Africa to Europe and to Americas. Now this part of Africa is opening up to the Atlantic Ocean, and therefore the transatlantic trade, so which means from one part of the Atlantic to the other part, because if you see France, UK, all these European countries and even the Americas, they all open up to the Atlantic Ocean, and therefore the laborers, they used to go all the way to Americas, to Europe, and also they used to come back over here and work on different plantations, either in Europe or in Africa. So this was a very important part of the ancient, or shall we say, the imperialist transatlantic slave trade. Now, apparently इस country में from the last more than 20 years we are seeing a situation of civil war. Sir, is civil war a very uncommon thing in Africa? No, it's a very, very common thing. Across Africa, across many countries in Africa, you have different clans, you have different ethnicities, you have different communities, you have multiple castes, and cutting across all caste lines and all community and all ethnicities, you have conflicts. All right. Now, for example, in South Asia, we see that religion is the common ground for conflicts. In Africa, we see that different ethnic communities and different different tribal laws, different laws of the communities becomes the breeding ground for conflicts between two or more communities. और ये सेरा लियोन में जो सिचुएशन है, इसको कंट्रोल करने के लिए काफी सारी, जैसे यूएन की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, इन सब ने भी कोशिश करी है सेरा लियोन में सिविल वॉर को डी-एस्केलेट करने की. However, this problem is very rampant over here. Now, but in the recent years, this country also witnessed considerable economic growth. Why? Because of the diamonds, because of the trade in these diamonds happening over here. And एक टर्म यहां पे जो कॉइन करा गया है, वो टर्म का नाम है ब्लड डायमंड्स. और डायमंड्स की सेल से इलिसिट ट्रेड ऑफ डायमंड्स की सेल से जो पैसा, जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है, वो सिविल वॉर को कंट्रीब्यूट कर रहा है. Government efforts have failed. Government efforts have totally failed in terms of curbing this trade. Although government के जो efforts हैं, they have been directed कि कैसे इस illicit trade को रोका जा सकता है, but they have been very inconsequential, shall we say. अब blood diamonds की definition क्या है? देखो, blood diamonds को हम conflict diamonds भी कहते हैं, यानी कि ये वो diamonds हैं जो कहां पे माइन करे जाते हैं, वहां पे माइन किए जाते हैं जो कि war zones हैं, यानी कि जहां पे वॉर हो रहा है, जहां पे सिविल वॉर हो रहा है. और देन उसके बाद वो डायमंड्स को माइन करके वो बेचे जाते हैं. दे आर सोल्ड टू फाइनेंस द आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स अगेंस्ट द लेजिटिमेट गवर्नमेंट्स. नाउ अब आपको ये बता दूं, अफ्रीका में जैसे कि एक एक्रोनिम है बाय द नेम ऑफ सेल्ड. सो सेरा लियोन, एंगोला, आइवरी कोस्ट, लाइबेरिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इन कंट्रीज में ना इंटरनली बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है. और यहां पे जो डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज हैं,
वो एक दूसरे के साथ लड़ाई लड़ रही हैं और वो इन कंट्रीज की रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स के साथ भी लड़ाई लड़ रही हैं। एंड देयरफॉर इस लड़ाई को फाइनेंस और इस लड़ाई का मोमेंटम बनाने के लिए जो पैसा आ रहा है वो कहां से आ रहा है? इस डायमंड को स्मगल करके, इस डायमंड का इलिसिट ट्रेड करके अंतरराष्ट्रीय मार्केट में। लेकिन इसको हम ब्लड डायमंड्स क्यों कहते हैं? वो इस करके कहते हैं बिकॉज अक्सर ये उस एरियाज में माइन किए जाते हैं, और कॉन्फ्लिक्ट एरियाज तो है, वो तो बात समझ आती है, लेकिन ऐसे एरियाज जहां पे छोटे बच्चों को, इनोसेंट लोगों को, बूढ़ों को, औरतों को मजबूरन धक्के से काम करवाया जाता है, और वो धक्के से काम कराया जाता है जिसके कारण कई सारे ह्यूमन राइट वायलेशंस भी होते हैं। और वो फोर्स लेबर करवाने से जो पैसा आता है, जो डायमंड को बेच के, डायमंड को अंतरराष्ट्रीय मार्केट में बेच के, उस पैसे से ये अपनी सिविल वॉर्स और अपनी वॉर्स अगेंस्ट द लेजिटिमेट इलेक्टेड गवर्नमेंट लड़ते हैं। अब ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन यूएन के द्वारा फॉर्म करी गई थी 1990s में, बिकॉज बहुत सारी ब्रूटल सिविल वॉर्स हो रही थी ऑल अक्रॉस सीरा लियोन, ऑल अक्रॉस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, द सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज, बुरुंडी, रवांडा। तो इन कंट्रीज में बहुत ज्यादा जहां पे डायमंड माइंस पाए जाते हैं, जो डायमंड रिच कंट्रीज हैं, सो देयर वाज अ वेव ऑफ सिविल वॉर्स हैपनिंग इन दीज कंट्रीज बैक इन द 90s। हैज द सिचुएशन इंप्रूव्ड? नो सर, द सिचुएशन हैज नॉट इंप्रूव्ड। देयर आर स्टिल सिविल वॉर्स and sectarian wars happening in this resource rich continent. So ये जो नेम है ब्लड डायमंड, ये रेफर करता है डार्क और बहुत अनफॉर्चुनेट रियलिटी ऑफ एन इंडस्ट्री, कि एक ऐसी इंडस्ट्री जो कि बहुत पैसा दे सकती है, जो कि लोगों को रातों रात अमीर भी बना सकती है, बिकॉज ऑफ कोर्स डायमंड इज मच मोर प्रेशियस देन गोल्ड। लेकिन जब इसको अनचेक्ड रखते हैं, जब इसको रेगुलेट नहीं करते हैं, सो दिस विल हैव कॉन्सिक्वेंसेस एंड दिस कैन कॉज हार्म टू इंडिविजुअल्स, टू कम्युनिटीज, and also wipe out nations altogether. और यूएन के मुताबिक ब्लड डायमंड्स और कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स both imply gems which were mined within war-torn areas and they were sold with the intention of financing the particular rebel movements, जो कि लोगों की जो निजी जिंदगी है, डोमेस्टिक लाइफ है, उनके जो ह्यूमन राइट्स है, वो कंप्लीटली वायलेट कर सकती है। तो पिछले कुछ 10-15 सालों में सीरा लियोन, एंगोला, आइवरी कोस्ट, लाइबेरिया, डीआरसी, इन कंट्रीज में डीआरसी has been in the news. DRC has been in the news for its mineral wealth, whether it's cobalt, whether it's coltan, or whether it's diamond. DRC has been in news also for the sectarian conflict between the Hutus and the Tutsis. So therefore DRC को लेके क्वेश्चन 3 बारी रादर आ चुका है लास्ट 3 इयर्स में से। सो प्रोबेबिलिटी काफी है डीआरसी की इस बार फिर से पूछने के लिए। सो आपको पता हो कि डीआरसी इज ऑल्सो अमंग वन ऑफ दोस कंट्रीज जहां पे ये ब्लड डायमंड का कॉन्सेप्ट, यानी कि जहां पे इलिसिट डायमंड ट्रेड हो रहा था, जहां पे डायमंड माइन किया जा रहा था। एंड द सेल ऑफ द ब्लड डायमंड्स हैज कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स इंस्टेबिलिटी एंड सफरिंग इन दीज रीजन्स, which is leading to a global effort कि कैसे हम डायमंड ट्रेड को रेगुलेट करें और ये कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स को अंतरराष्ट्रीय मार्केट में इसकी सेल को रोक सकें। अब इसके लिए एक प्रोसेस बनाया गया है इसकी इलिसिट ट्रेड को रोकने के लिए। उस प्रोसेस का नाम है सर किम्बरले प्रोसेस। किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम ये शुरू करी गई थी 2003 में। नाउ किम्बरले इज ऑल्सो अ नेम ऑफ अ प्लेस जहां पे डायमंड माइंस है। कहां पे है? साउथ अफ्रीका में है। अब ये अंतरराष्ट्रीय एग्रीमेंट बनाया गया है किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम, जिसका मकसद क्या है कि जो ट्रेड है कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स का उसको रोकना है और सर्टिफाई करना है कि जो ओरिजिन है रफ डायमंड्स का वो कहां से आया है। जो डायमंड जो कि एक्सपोर्ट हो रहे हैं अंतरराष्ट्रीय मार्केट में, वो कौन सी कंट्री, उसका जो सोर्स ऑफ ओरिजिन है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, वो कौन सा है। क्या वो कोई ऐसी कंट्री तो नहीं जहां पे सिविल वॉर चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। लेकिन किम्बरले प्रोसेस को क्रिटिसाइज भी करा गया है कि वो बहुत लिमिटेड और नैरो है अपनी डेफिनेशन में ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स एंड इट इज नॉट एबल टू एड्रेस जो ह्यूमन राइट अब्यूजेस हो रहे हैं इस इंडस्ट्री में in the form of forced labor. What are the human right abuses happening in this industry? The forced labor, making innocent kids, making innocent women and elderly people work in this process, work in this sector. That is very, very unfortunate. Now, despite the challenges, I'm very happy to tell कि Kimberley process has had some success in reducing the trade in blood diamonds. और जो percentage है
ऑफ द रफ डायमंड्स ऑफ ओरिजिन, जहां से वो ओरिजिनेट करे हैं, जो कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में एक्सपोर्ट हो रहे हैं. नाउ द परसेंटेज ऑफ रफ डायमंड्स विच आर सर्टिफाइड एज कॉन्फ्लिक्ट फ्री, अगर वो 40% थे 2003 में, आज वो 99% है. विच मींस कि आज अंतरराष्ट्रीय मार्केट में 99% डायमंड्स जो कि एक्सपोर्ट हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं, वो वॉर टॉन या कॉन्फ्लिक्ट जोन से नहीं आ रहे हैं. बट हियर इज द कैच, इवन अगर सर्टिफाइड डायमंड्स, इवन अगर हम डायमंड्स को सर्टिफाइड कर रहे हैं कि वो कॉन्फ्लिक्ट जोन से नहीं आ रहे हैं, क्या गारंटी है, क्या गारंटी है कि वो जो सर्टिफाइड डायमंड्स हैं वो इंटायरली कॉन्फ्लिक्ट फ्री नहीं है. Which means कि लेट्स से मैं अगर सिएरा लियोन में बैठा हूं और वहां से मैंने डायमंड्स इलिसिटली किसी ऐसी कंट्री को स्मगल करे जिस कंट्री में वॉर नहीं हो रहा, जिस कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा, और वो कंट्री आगे उस डायमंड को अगेन सेल कर रही है, बाकी जगह एक्सपोर्ट कर रही है. सो अगेन यहां पे लूपहोल्स आ जाते हैं. तो इसमें कोई गारंटी, किम्बरले प्रोसेस केवल सर्टिफाई कर रहा है, ओनली सर्टिफाई कर रहा है ओरिजिन ऑफ द रफ डायमंड्स को, लेकिन जो पॉलिश डायमंड्स हैं जो कि कंज्यूमर्स को सोल्ड किए जा रहे हैं, सेल किए जा रहे हैं, उसकी सर्टिफिकेशन नहीं हो रही है. यानी कि जो एंड कंज्यूमर डायमंड यूज कर रहा है उसकी सर्टिफिकेशन किम्बरले प्रोसेस नहीं कर रहा है. विच मींस अगर सिएरा लियोन में से मैंने रफ डायमंड को माइन किया है और मैंने किसी ऐसे देश को बेच दिया जो कि किम्बरले प्रोसेस की कंप्लायंसेस के साथ कंप्लाई कर रहा है, और वहां पे वो डायमंड पॉलिश होकर आगे अंतरराष्ट्रीय मार्केट में जाता है, तो मैंने तो अपने पैसे कमा लिए. सो देयरफॉर यहां पे कुछ लूपहोल्स हैं, यहां पे कुछ गैप्स हैं जिसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. नाउ डायमंड प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कौन सी हैं, जैसे जिम्बाब्वे है, कॉन्गो है, अंगोला है, सिएरा लियोन है, आइवरी कोस्ट हो गया, लाइबेरिया हो गया, और ये सेल्ड, ये एक्रोनिम है SAILD, सेल्ड, जहां पे ब्लड डायमंड कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं. सो वंस अगेन सिएरा, Angola, Ivory Coast, Liberia and the DRC, which is the Democratic Republic of Congo. Now, Kimberley Process एक मल्टीलेटरल ट्रेड रजीम है जो कि 2003 में स्टैब्लिश करी गई थी. अगेन इसका मकसद क्या था, फ्लो ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स को प्रिवेंट करना है. ठीक है, तो ये केवल सर्टिफाई करता है ओरिजिन ऑफ द रफ डायमंड्स को, पॉलिश डायमंड्स को नहीं करता है. और ये किम्बरले प्रोसेस के जो मेंबर्स हैं, जो कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं, माइंड यू इंडिया भी एक इंपॉर्टेंट मेंबर है किम्बरले प्रोसेस का, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेमिंग 99.8% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स. व्हिच मींस कि ये जो किम्बरले प्रोसेस के जो मेंबर्स हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल के लगभग 100%, ऑलमोस्ट क्लोज टू 100% ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट डायमंड जो है एटलीस्ट वो रफ फॉर्म में ट्रेड ना हो, एक्सपोर्ट ना हो. सो देयरफॉर सरकारें, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर, खास करके जो जेम्स और ज्वेलरी इंडस्ट्री में, जो जेम्स और ज्वेलरी से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है, ये सभी किम्बरले प्रोसेस के साथ कोऑपरेट करते हैं. और ये कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स को कैसे डिफाइन करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स वो हैं, यानी कि वो रफ डायमंड्स, यानी कि वो अनपॉलिश्ड डायमंड्स जिनको आप यूज करते हैं टू फाइनेंस वॉर्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स विच अराउंड द वर्ल्ड. अब इसमें 59 पार्टिसिपेंट्स हैं रिप्रेजेंटिंग 85 कंट्रीज, बिकॉज इसमें एक ब्लॉक है यूरोपियन यूनियन का जो कि 27 मेंबर स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, सो वंस अगेन हम देख सकते हैं इस इंटायर लिस्ट में इंडिया भी आता है. इंडिया इज ऑल्सो देयर, इंडिया इज ऑल्सो एन एक्टिव पार्टिसिपेंट. इनफैक्ट 22 डायमंड प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो कि सिग्नेटरीज हैं टू द किम्बरले प्रोसेस, उसमें से इंडिया का नाम भी आता है. इंडिया इज ऑल्सो इंक्लूडेड ओवर हियर. ऑलराइट, और यहां पे बाकी सब कंट्रीज हैं. ऑफ कोर्स ये सारी की सारी कंट्रीज आपको याद नहीं रहेंगी. इंपॉर्टेंट कंट्रीज कौन सी हैं उनका आप नाम यहां पे याद रख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल चाइना है, यहां पे कनाडा है, इंडिया है. ऑलराइट, देन यहां पे यूके भी है, यूएसए भी है. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जो कि इस फॉर्मेट में है. सो दोस्तों ये बहुत होलिस्टिकली मैंने डिस्कस करा ब्लड डायमंड्स के बारे, कॉन्फ्लिक्ट फ्री डायमंड्स के बारे, सिएरा लियोन के बारे, कॉन्फ्लिक्ट जोन्स, वॉर जोन्स, डायमंड जोन्स इन अफ्रीका के बारे. और डिटेल में जानना चाहते हैं अफ्रीका से रिलेटेड न्यूज, अमेरिकाज, साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया का नेबरहुड, सेंट्रल एशिया, बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत कुछ है और बहुत कम समय में कवर करवाया है हमारे रैपिड रिवीजन प्रोग्राम में. जानकारी लेने के लिए टोल फ्री नंबर पे कॉल जरूर कर लेना और मुझे कमेंट सेक्शन पे कम से कम 100 कमेंट्स अगर आते हैं बाय द वर्ड कन्वेंशन, आपने एक टर्म है कन्वेंशन, ये कन्वेंशन वर्ड आपने कम से कम 100
कम से कम 100 कमेंट्स आने चाहिए 100 डिफरेंट यूजर्स के, तो मैं एक इंपॉर्टेंट कन्वेंशन के ऊपर अगली बार वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अगर 100 कमेंट्स नहीं आते हैं तो मैं नहीं बनाऊंगा, एज सिंपल एज दैट। सी यू सून, थैंक यू।